Hello students, welcome again. Now today we will learn, that means as we have done with the chemistry section, that means metal and non-metal. So today we will learn that we move on to the next chapter. And the chapter name is heredity and evolution. Very very important chapter. As we have read reproduction, हम reproduction पढ़ चुके हैं. So another important topic regarding the progeny, you can say the offspring कैसी होगी. So that this all depends on heredity. Very very important. कि what is heredity? Heredity is the passage of characters from one generation to another. That means एक आने वाली जो पीढ़ी है वो किस प्रकार की होगी. That this all depends on heredity. And heredity and the other term is evolution. This is expelled from our course, so we will not read we will not learn evolution. If time will allow, I will tell you कि what is evolution as well. So very very important term heredity कि as we know कि जब हमारे जो characters हैं हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, that means the characters what we are having today resembles with our parents. हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं. So why do they so? ऐसा क्यों होता है? So this is because of heredity, or you can say inheritance. Very very important topic and very very easy it is. Some terms are very technical in this one. Some terms are very very technical. अगर हम terms को सीख जाएंगे, so the chapter will be easier for us. So understand in first instance. Otherwise, we will learn more about in school as well. As we know, कि school are reopening. So it is very very important topic. Heredity. What is heredity? The passage of, or you can say transmission of, or you can say transfer of characters from one generation to another. So during reproduction, what happens? We know that the gametes from male and gametes from female comes and zygote is formed. So during this formation of zygote, some characters are coming from parent, that means father, and some characters are coming from mother. दो characters आ रहे हैं. One part from father and other part from mother. So in that, what happens कि some variations, अगर कुछ variations आ जाती हैं, so आने वाली पीढ़ी किस प्रकार की होगी, उसकी हाइट कैसी होगी, उसका आई का कलर कैसा होगा, हेयर कैसे होंगे, स्किन कलर कैसा होगा. इट ऑल डिपेंड्स ऑन इन हेरिडिटी. सो व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी इज द पैसेज ऑफ और ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ट्रेट्स. अब यहाँ पे कैरेक्टर्स का यूज कम होगा, ट्रेट्स का इस्तेमाल. द यूज ऑफ ट्रेट इज यूजुअली दे यूज द टर्म traits. So traits stand for characters. The transmission of traits from parents to the offspring is known as heredity or inheritance. हमने देखा कि फर्स्ट डेफिनेशन कि कैरेक्टर्स का एक पीढ़ी से, पेरेंट्स से आने वाली पीढ़ी में जाना, जनरेशन में जाना, दिस इज नोन एज हेरिडिटी. उन कैरेक्टर्स का पास होना फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, इट इज नोन एज हेरिडिटी. और यू कैन से इनहेरिटेंस. ओके, सो व्हाट हैपेंस कि हम देखते हैं कि अगर मम्मी, फादर और मदर की आंखें ब्राउन हैं तो जो बच्चा है उसकी आंखें भी ब्राउन हो सकती हैं, उसकी आंखें ब्लैक भी हो सकती हैं. सो इट इज इनहेरिटेंस. वो इनहेरिटेंस है. किसी का फादर लंबे हैं तो उनका जो लड़का या लड़की होती है उसकी हाइट भी लंबी होती है. इट इज बिकॉज ऑफ हेरिडिटी. किसी की मदर लंबी है तो जो लड़का होगा, और यू कैन से द गर्ल और यू कैन से द बॉय ऑल्सो गेट द हाइट ऑफ मदर. वो एक कैरेक्टर है जो उसको अपनी पीढ़ी से मिल रहा है, एंसेस्टर्स से मिल रहा है, अपने पेरेंट्स से मिल रहा है. सो सम कैरेक्टर्स आर देयर विच ट्रांसमिट फ्रॉम अ जनरेशन टू अनदर, और यू कैन से द मैक्सिमम जनरेशन द कैरेक्टर्स आर देयर जो ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. सो द कैरेक्टर्स आर नोन एज ट्रेट्स. जो कैरेक्टर ट्रेट होते हैं, दैट मीन्स कैरेक्टर आर नोन एज ट्रेट. कैरेक्टर को हम ट्रेट्स कहते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहे हैं. ओके, द प्रोसेस बाय विच ट्रेट पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, इट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस. द होल प्रोसेस बाय विच द कैरेक्टर्स आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, द होल प्रोसेस इज नोन एज इनहेरिटेंस. लेट्स सपोज पेरेंट इज देयर. आई हैव ड्रॉन अ फिगर हियर. पेरेंट इज देयर. ऑब्वियस है कि
मेल होगा फीमेल होगा, बट आई हैव जस्ट मेड वन पेरेंट हियर, so that parent generation will be known as P1. Okay, and these are the traits on eye color कैसा होगा, स्किन कलर कैसा होगा, ईयर लोब्स कैसे होंगे. समवेयर यू हैव सीन द ईयर लोब्स जो होते हैं वो ज्वाइंट होते हैं, लिंक्ड होते हैं इसके साथ विद द चीक. और हाइट कैसी होगी, इट ऑल डिपेंड्स कि कितने कैरेक्टर, कौन से कैरेक्टर आने वाली पीढ़ी पर जा रहे हैं. सो आफ्टर दैट कि जो संतान पैदा हुई, बट यू कैन से द जो बच्चा पैदा हुआ, इट इज कॉल्ड F1 जनरेशन. अब इफ इसकी आई भी सेम फादर की जैसे है, हाइट भी सेम फादर की जैसे है, और ईयर लोब्स भी सेम फादर की जैसे है, यू कैन से स्किन कलर इज एज सेम एज ऑफ हिज फादर, तो दैट मीन्स कि जितने भी कैरेक्टर्स थे वो पास ऑन हो गए आगे आने वाली जनरेशन में. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इस जनरेशन को प्रोजेनी भी कहते हैं, प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग. टू अनदर इंपॉर्टेंट टर्म, ऑफस्प्रिंग एंड प्रोजेनी. इस F1 जनरेशन को प्रोजेनी कहते हैं. लेट्स सपोज इसका जो आने वाली पीढ़ी होगी तो इट विल हैव कैरेक्टर ऑफ दिस, जो अपनी पिछली पीढ़ी से लेते हुए आ रहा है, तो पिछली जनरेशन जो लेते हुए कैरेक्टर्स आ रहा है वो पास ऑन करेगा आगे आने वाले पीढ़ी पर. उसकी जो सन होगा उसकी जनरेशन क्या कहलाएगी, F2 जनरेशन. जो उसके होने वाले बच्चे होंगे, दैट जनरेशन विल बी नोन एज F2 जनरेशन. एंड द कैरेक्टर्स आर, यू कैन से द कैरेक्टर जो इनको कैरी करता, दैट इज नोन एज क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम जो न्यूक्लियस के, हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है, दैट कैरीज दीज कैरेक्टर्स, वो इन कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं. इनसाइड दिस जीन इज देयर, inside this gene is there, and for each character a specialized gene is there. इनके सेगमेंट को हम जीन कहते हैं, क्रोमोसोम के सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं. वो एक स्पेशल कैरेक्टर को एक स्पेशल जीन कैरी करता है, विच कैरीज द कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इन कैरेक्टर्स का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, दैट इज नॉन एज हेरिडिटी. कि जो होने वाली संतान है वो किस प्रकार की होगी, कैसी होगी, छोटी होगी, बड़ी होगी, दैट मीन्स टॉल होगी, ड्वार्फ होगी, और यू कैन से आई कलर कैसा होगा, स्किन कलर कैसा होगा, हेयर कर्ली होंगे, और यू कैन से स्ट्रेट हेयर भी होते हैं. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दीज कैरेक्टर्स. सो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना, दिस इज नोन एज हेरिडिटी. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स. फर्स्ट इनहेरिटेड and second is acquired. First, inherited characters are those characters which are inherited from the ancestors, जो उसको अपने पेरेंट्स से मिला. Okay, so you can say inherited characters. Here you will write inherited characters. And very very important, inherited character. Inherited character are those character जो उसने अपनी पीछे वाली पीढ़ी से पाए हैं या उसके पास आए हैं through the process of heredity. Inherited characters are that means which he get or which he or she got from their parents. Parents जो मिले हैं, और you can say कि इन characters को वो आगे आने वाली पीढ़ी को भी ट्रांसफर करेगा. Okay, that means which he got from parents, जो पेरेंट्स से मिले. Like you can say skin color, eye color, earlobes. These are inherited characters. Height कैसी होगी? So these all are inherited characters. But some characters are acquired during his lifespan, his or her lifespan. कुछ character ऐसे होते हैं जो एक lifespan के, एक व्यक्ति के, एक you can say एक man के, एक woman के lifespan में जो वो attain करता है, वो get करता है, वो gain करता है. Let's suppose कि a man is very intelligent, but it is not compulsory कि his son will be also intelligent. So this is acquired character. Brain, a memory, you can say it is acquired character. और you can say किसी ने खूब एक्सरसाइज की, अपने मसल्स बिल्डअप कर लिए, so it is also acquired character. अपने acquired character build-up, body building की, and he attains muscles, good muscles.
तो ऐसा नहीं है कि वो कैरेक्टर उसके आगे आने वाली पीढ़ी पर अपने आप ही चले जाएंगे। सो जो उसने अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से अपने आप अटेन किए, सो दे आर नोन एज एक्वायर्ड कैरेक्टर्स विच कैन नॉट बी इनहेरिटेड, which cannot be inherited from one generation to other. So these are two important terms regarding characters कि which some characters are inherited, जो वो आने वाली पिछली पीढ़ी से लेते हुए आ रहा है। लेट सपोज किसी के आई कलर ब्लू है, तो वो ब्लू आई कलर का जो कैरेक्टर है वो पिछली पीढ़ी से लेते हुए आ रहा है, तो आगे आने वाली संतान भी ब्लू कलर की आई की पैदा हो सकती है। बट इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि दैट मीन इट इज नॉट कंपल्सरी कि ब्लू ही होगी, ब्लू आइज का ही जो बच्चा होगा वो ब्लू आइज का ही होगा। बट द कैरेक्टर ही और शी इज कैरिंग फ्रॉम हिज और हर एंसेस्टर, वो अपने एंसेस्टर से वो कैरेक्टर को लेते आ रहा है। हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी या आगे आने वाली जनरेशन में से कोई एक ऐसा पैदा हो जिसकी आईज ब्लू हो सकती है। एंड सम कैरेक्टर्स आर एक्वायर्ड ड्यूरिंग अ लाइफ स्पैन, अपनी जिंदगी में जो व्यक्ति जी रहा है उससे जो कैरेक्टर्स अटेन कर रहा है, तो दीज आर ऑल्सो कैरेक्टर्स। बट द मसल बिल्डिंग और यू कैन से द मेमोरी इज ऑल्सो व्हाट वी कैन से, इट इज ऑल्सो कैरेक्टर कि वो शार्प माइंड का है। सो शार्प माइंड के फादर का जो बच्चा है, तो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि वो भी शार्प माइंड का ही होगा, बट उसने अपने लाइफ स्पैन में वो एक कैरेक्टर अटेन किया कि उसका माइंड बड़ा शार्प है, मेमोरी बड़ी शार्प है। बट वो कैरेक्टर वो आगे आने की पीढ़ी को नहीं दे सकता। कोई इंटेलिजेंट है, उसका जो संतान है, उसकी जो पीढ़ी है, नेक्स्ट पीढ़ी जो हो रही है वो भी इंटेलिजेंट हो, इट इज नॉट कंपल्सरी, बट हो भी सकता है और यू कैन से नहीं भी हो सकता है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट आर हेरिडिटी, व्हाट इज हेरिडिटी and what are characters. Some characters are inherited, some characters are acquired. So during reproduction what happens कि कुछ पार्ट तो मेल से आया, कुछ पार्ट फीमेल से आया, और some variations are also there. Variation is that जो कुछ चेंजेस जो हमें मिलते हैं, हम सेम आइडेंटिकल नहीं है अपने फादर की, अपने मदर की जैसे, बट सम कैरेक्टर्स आर रिजेंबलिंग विथ द पेरेंट्स से रिजेंबल करती हैं हमारी कुछ यू कैन से कुछ हैबिट्स हमारे रिजेंबल करते हैं आर पेरेंट्स के साथ, बिकॉज क्योंकि वो इनहेरिटेड कैरेक्टर्स हैं। हमारे जो फादर के और मदर के जो कैरेक्टर्स होंगे वो ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर से मिलते होंगे, बिकॉज क्योंकि वो उन्हीं की प्रोजेनी है, एंड अल्टीमेटली वी आर प्रोजेनी ऑफ आर पेरेंट्स, हम अपने पेरेंट्स की प्रोजेनी है। सो वो कैरेक्टर्स हम भी फॉलो कर रहे हैं, वो हम भी ट्रांसमिट कर रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर ड्यू टू द जीन, क्योंकि हमको जो क्रोमोसोम्स मिले वो हमारे फादर की डीएनए से मिला, फादर की क्रोमोसोम से हमें भी वो क्रोमोसोम्स मिला। सो हम भी वही जीन फॉलो कर रहे हैं, वही जीन को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं फ्रॉम दिस जनरेशन टू अनदर जनरेशन। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन generation to another, it is known as heredity. The whole process is known as inheritance. So some characters I have written here कि आई की जो आगे आने वाली पीढ़ी होगी उसका आई कलर कैसा होगा, स्किन कलर कैसा होगा, ईयर लोब्स कैसे होंगे, हाइट कैसी होगी, और यू कैन से हेयर कैसा होगा। हेयर कलर भी हम देखते हैं कि डिफरेंट होते हैं, किसी के ब्राउन कलर होता है हेयर में, कोई करली हेयर वाला होता है। इट इज ऑल अ फैमिली कैरेक्टर, दिस इज इनहेरिटेड कैरेक्टर जो हम अपने पूर्वजों से, अपने एंसेस्टर से लेते हुए आ रहे हैं आगे। सो दे आर नोन एज इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। सो कैरेक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स and the parent generation is known as P1 generation. So during what you can say कि जो कैरेक्टर्स हम फॉलो कर रहे हैं, जो संतान पैदा होगी उस संतान को हम F1 जनरेशन कहते हैं। ऑफनली इट इज नोन एज प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग। टू टिपिकल टर्म आर देयर प्रोजेनी एंड ट्रेट्स। सो टू टर्म्स वी हैव क्लियर्ड हियर कि वन टर्म इज ट्रेट एंड वन टर्म इज प्रोजेनी। हम ये टर्म्स को अगर सीखते जाएंगे तो द चैप्टर विल बी इजियर फॉर अस। सो अब इसकी जो आने वाली संतान होगी और यू कैन से तो इसके बच्चे होंगे, दैट विल बी नोन एज F2 जनरेशन। एंड कैरेक्टर्स आर टू टाइप, इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड। इनहेरिटेड जो हम पीढ़ी से लेते हुए आ रहे हैं एंसेस्टर से, जो हम आगे आने वाली पीढ़ी को भी देंगे। एंड
आफ्टर दैट एक्वायर्ड कैरेक्टर जो हम अपनी लाइफ स्पैन में अटेन करते हैं, दैट विल बी नोन एज एक्वायर्ड कैरेक्टर्स. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. द टॉपिक इज एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. वी नो दैट कि वी आर नॉट जस्ट सिमिलर टू आवर पेरेंट्स. हम जानते हैं कि हम अपने पेरेंट्स से बिल्कुल सिमिलर नहीं हैं, बट सम कैरेक्टर्स आर दैट मीन्स सिमिलर इन अस. हमारे कुछ कैरेक्टर हमारे पेरेंट्स से सिमिलर. सो व्हाई द एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशंस आर देयर मीन्स वेरिएशन क्यों अकर हो रही है, क्यों अक्यूमुलेट हो जा रही है, क्यों जमा, दैट मीन वेरिएशन क्यों अकर हो रही है. दैट दिस इज द मेन टॉपिक. द वेरिएशन आर एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन एंड ट्रांसफर्ड फ्रॉम one generation to another. We know that कि during after reproduction we born after reproduction. That means reproduction हुआ, then a parent that means give rise to a new offspring. A parent जो नए offspring को जन्म देता है. So during this reproduction, the variation were accumulated during reproduction. जितने भी एक पार्ट मेल से आए, एक पार्ट फीमेल से आए, कुछ कैरेक्टर्स मेल से आए, that means फादर से आए, कुछ मदर से आए, then we have acquired the both the character. हमने दोनों कैरेक्टर लिए. So during the DNA copying के द्वारा कुछ एरर हमारी बॉडी के अंदर, that means हमारे DNA copying के द्वारा जब हमारा DNA copying होता है in the cell, in the that means early stages, तो what happens कि कुछ एरर उसमें अकर हो जाता है, कुछ एरर होता है, क्रॉसिंग ओवर होते हैं, म्यूटेशंस होते हैं. So after that what happens कि कुछ कैरेक्टर तो हम एज इट इज कैरी कर लेते हैं, कुछ हमारे अंदर वेरिएशन आते हैं, कुछ चेंजेस आ जाते हैं. सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट जस्ट आइडेंटिकल टू आवर पेरेंट्स. कुछ वेरिएशन हमारे अंदर अकर होते हैं, दो वी आर कैरिंग द सेम कैरेक्टर्स. कुछ कैरेक्टर हमारे सिमिलर होंगे, वी आर रिजेंबल विद आवर पेरेंट्स, बट दो वी आर नॉट आइडेंटिकल. ओके, सो दैट्स व्हाट हैपेंस कि रिप्रोडक्शन में जितने भी डीएनए कॉपिंग होती है, व्हाट उसमें क्या होता है कि जो भी कैरेक्टर हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, जो ले रहे हैं, उसमें कुछ वेरिएशन आ जाते हैं, दैट मीन कुछ चेंज आते हैं ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, ड्यू टू म्यूटेशंस. सो वी कुछ जो वेरिएशन हमारे अंदर आए वो हमने ट्रांसफर किया आगे आने वाली प्रोजेनी में, आगे आने वाली जनरेशन में. सो वेरिएशंस आर एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस एक्यूमुलेट होती हैं बिकॉज सम पार्ट इज कमिंग फ्रॉम फादर एंड सम पार्ट इज कमिंग फ्रॉम मदर. एंड ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग कुछ वेरिएशंस उसमें भी, कुछ चेंजेस उसमें भी अकर हो जाते हैं. सो दैट्स व्हाई तो जब वेरिएशंस अकर ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. सेकंड टॉपिक, सेकंड टर्म, द इंफॉर्मेशन टू बी इनहेरिटेड इज प्रेजेंट इन द सेक्स सेल और गैमेट्स. वी नो दैट कि वी आर द प्रोडक्ट ऑफ मदर एंड फीमेल गैमेट्स, मदर एंड फादर गैमेट्स. उनके गैमेट का प्रोडक्ट, वी आर द प्रोडक्ट ऑफ, और यू कैन से एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोडक्ट ऑफ, वी कैन से जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहा है, ही और शी, और यू कैन से एनी ऑर्गेनिज्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ फीमेल एंड मेल गैमेट्स. तो व्हाट हैपेंस कि अल्टीमेटली जो वेरिएशंस अकर हैं, जो एक्यूमुलेट हो रहे हैं, वो सेक्स सेल और गैमेट्स के अंदर जो डीएनए है, जो उसके अंदर जो हैप्लॉइड सेल बन रहा है, उससे उसमें जो कौन सा क्रोमोसोम आया, कौन सा जीन उसमें प्रेजेंट है, उस पर डिपेंड करता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन हम इनहेरिटेड कर रहे हैं. सो द इंफॉर्मेशन इज टू बी इनहेरिटेड. जो भी इंफॉर्मेशन और ये कहते हैं कैरेक्टर्स जो हम ले रहे हैं, इट इज ऑल प्रेजेंट इन सेक्स सेल और गैमेट्स. वो कहां प्रेजेंट है? इधर मेल गैमेट और इधर इन फीमेल गैमेट, और मैक्सिमम इट इज फ्रॉम मेल गैमेट्स. ओके, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, उनके गैमेट्स में ही वो प्रेजेंट होते हैं. ओके, जो भी होंगे वो जितने भी कैरेक्टर्स किसमें प्रेजेंट होंगे, उनके गैमेट्स में प्रेजेंट होंगे. These gametes are link for passing of traits from parents to progeny. यही वो लिंक है. It is the only link. The sex cell or gametes. These gametes are only the link of passing of traits. जिससे traits pass हो रहे हैं from one generation to another generation. Okay. Now the fourth point. During the sexual reproduction, the hereditary information are transmitted from parent to offspring through these gametes. जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो किससे पास ऑन हो रही है? थ्रू द गैमेट्स, सेक्स सेल और गैमेट्स. ओके, बिकॉज दे आर अल्टीमेटली दे आर प्रोड्यूसिंग द न्यू ऑफस्प्रिंग. एक मेल और एक फीमेल ही प्रोड्यूस कर रहे हैं न्यू ऑफस्प्रिंग. इधर इट इज एनिमल और वेदर इट इज
human being or whether it is plant, if they are sexually reproducing, so they will have two gametes, male and female. Okay, so ultimately the gametes are responsible for passing of traits. जो ट्रेड पास हो रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली प्लांट जो नया प्लांट बन रहा है वो एक मेल पार्ट से आ रहा है, एक फीमेल पार्ट से आ रहा है, अल्टीमेटली वही प्रोड्यूस कर रहा है. सो द लिंक बिटवीन देम इज द gametes. Okay, so that's why variation occurs. Now, so sexual reproduction brings about variations. हम जानते हैं वेरिएशन प्रोड्यूस होंगी बिकॉज हम आइडेंटिकल तो हो नहीं सकते, और एनी यू कैन से कि एनी ऑर्गेनिज्म इज नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट. आइडेंटिकल इन द सेंस कि सेम वैसा ही नहीं. ह्यूमन तो है, और यू कैन से कुछ वेरिएशन उसके अंदर आ गए हैं. बिसाइड अ नंबर ऑफ सिमिलरिटीज इन द ऑफस्प्रिंग, similarities भी हैं as well as variations is also there. So this is all about accumulation of variations during reproduction, and it is very important topic. So understand it in instance. If any problem is there, you can ask. And this is a brief introduction about heredity and the variation. Why variation occurs during reproduction. Okay.